Namaste to all my dear viewers. Myself Vaishali Sharma and I welcome you all to another episode of Biz Legal Talk Show, the platform created for those curious minds who wish to know the unexplored chapters of the legal fraternity. Our today's topic is business entities and with a specific focus on sole proprietorship and partnership firms, the most fundamental and the most usually found firms in India. To discuss the topic, we have with us Advocate Lalit Jain. Namaste. So, we had met you in our previous episode of Trademarks and were completely delighted by your answers and the insightful way you explained trademark as a concept to us. So, thank you so much for being here with us yet again, accepting our invitation. Thanks. So, since business entity is something which is really common and something which is most of the startups are confused about as to what to choose when you are starting something. So, just with a little intro, that what are the types of business entities that are found in India? Okay, basically before knowing what are the other types of business entities, let's understand how this particular question comes. The moment you think of doing any business in India, okay, the moment आपने जैसे ही सोचा मुझे कुछ बिजनेस करना है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं आजकल कि मैं कैसे स्टार्ट करूं और क्या करूं. राइट नाउ आई एम आंसरिंग टू क्या करूं. बराबर है. देखा जाएगा तो इन इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, ये दो जो एंटिटीज़ है, ये फॉर अपना टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, ये बहुत पुराना है इंडिया में. आई मीन टू से टू गो विदाउट सेइंग इट इज़ मोर देन 80 to 100 years, मोर देन दैट. हाँ, लिस्ट ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ आज की तारीख में एट प्रेजेंट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज which has private limited and public limited. Okay. These are the more basic things. Else there are, but I don't want to cover that part because as of now, since we are restricted ourselves to what are the type of business entities, go for it. Sole proprietor, partnership firm, LLP, OPC, private limited, public limited. Specific. Right. So since our today's episode is specifically focused on sole proprietorship and partnerships firm, my simple question would be that what are the plus minus of sole proprietorship firms? Okay, see every entities, in fact, see everything what you do in your life, everything has plus, everything has a minus. True. Right? Same case is with the sole proprietorship. Now, the first step definitely, let me tell you why sole proprietorship was so successful in India, maybe elsewhere. Why it has been so immensely popular is because there are no legal restrictions. Now the biggest advantage to tell you is there are no legal restrictions. And if I am saying legal restrictions, it means that you don't have to comply with regular daily updates to be given into ROC or ROF. Okay. And I am telling you, being a Baniya myself, Marwadi, we hate doing this uploading and filing and everything. But yes, now the days have changed. If you could have taken my interview maybe 40 years back, I would have told you don't opt any other else sole proprietorship. But today might be my answers will be different because of the situation and the current prevailing laws. Right. Coming to right now, I just want to say one thing regarding advantages and disadvantages. Advantages are many. You can start this firm within 2-3 days, except GST, 2-3 days. Okay. No minimum capital, no maximum capital. Right. You are the boss. You are own boss. You know how to run a company. You don't have to go anyone and say कि मैं ये कर रहा हूँ ना मैं वो कर रहा हूँ. ऐसे काम होता है. Partnership. Yes. Okay. Okay. Let me complete this sole proprietor first. Disadvantages. आज की तारीख में disadvantages यही है. Funding. Huge. There are major laws, which have started creating a problem in sole proprietorship. Unlimited liability. I can talk for hours and hours on this unlimited liability. Exactly. So 2 points. Advantages, no major legal compliances. Disadvantages, unlimited liability. Unlimited liability. Something which causes a hindrance. Today, in the yes. business. Today, yes. So for partnership, when someone is considering that as the type of business entity, then what are the pros and cons they need to know? See again, जिस तरीके से हमने प्रोप्राइटरशिप का बात किया है उसी तरीके से पार्टनरशिप. इनफैक्ट पार्टनरशिप ऑल्सो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमेंसली पॉपुलर एंड सक्सेस
बिजनेस एंटिटीज़. इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अगर हम आपने कभी डेटाबेस निकाला होगा, बहुत सारी कंपनीज़ ने पार्टनरशिप से ही धंधा स्टार्ट किया है. मे बी दे वर अर्लियर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बहुत अच्छे से पॉपुलर हुआ है, बहुत अच्छे से चला है. अभी जाकर बहुत सारे पार्टनरशिप्स हैव कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड और नाउ दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू LLP. फॉर व्हाट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. What are the plus and minuses? I think your question was. There are many, but I'm just restricting myself to two. One, again, no large legal compliance. आपने सोचा है मुझे बिजनेस करना है, आपका पार्टनर रेडी है, आप बैठ जाइए, अग्रीमेंट बनाइए, साइन कीजिए, स्टार्ट द बिजनेस. That's it. Simple as that. Disadvantage, same as proprietorship, unlimited liability. How this will hit you, I'll tell you maybe sometime later on, but it is a very big issue. Yes, now subject to one part. Partnership registration is not mandatory. Okay. ठीक है, but why, what, it's a different subject. So major plus minus is you can start the business, there are no legal restrictions, no legal compliances. Unlimited liability is the biggest disadvantage in partnership. So as you just mentioned that registering the partnership agreement is not compulsory. So even if you don't register it, are there any hindrances or any gruesome effects of it in the future? हाँ, देखिए ऐसा है, आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, मैंडेटरी नहीं है. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब मैंडेटरी नहीं तो करना ही क्यों है. Exactly. मत करो. एंड सी, गवर्नमेंट आर मोर स्मार्ट देन अस. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपर्ट्स देन अस. तो उन्होंने भी सोचा था कि क्या करना है, ऐसा क्या सिस्टम लेकर आए जहाँ पे हम उनको मैंडेटरी भी ना करें और ऑटोमेटिकली मैंडेटरी हो जाए. एंड नाउ देयर इज़ अ वेरी ब्रिलियंट सिस्टम. इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, फेयर इनफ, वाओ, बट remember one thing, if you're not registered, you cannot go to the court and claim your money. Okay. And do you know what is the minimum amount or the maximum amount? The law says 100 रुपये के नीचे रहेगा तो आप क्लेम करोगे, 100 रुपये के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो. जस्ट इमेजिन, आप 100 रुपये के लिए कोर्ट में जाने वाले हो. फॉर मी दिस इज समथिंग बियॉन्ड माई लॉजिक. Anyways, when the laws were made, maybe the 100 rupees was very big. But by making this particular provision that you cannot make your own claims beyond 100 rupees, it's a signal to all of them, indirectly get it registered. Exactly. But yes, just because the law is there, get it registered. Why not to register? Why to register? Let me tell you, it is basically, it is more of a two business partners or more, they have to take a call कि क्या ये बिजनेस में हमको रजिस्टर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. वो क्या सोचते हैं, हम क्यों बिजनेस करते हैं, एवरीवन हैज़ देयर ओन आइडियाज़. सो आई विल नॉट से लाइक दिस कि आप करो ही, बट आप मुझे पूछोगे लीगली, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म में भी अगर आपका एडवांस नहीं है, आप कर दीजिए. लॉ ने आपको इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप नहीं करोगे. आई डोंट नो व्हेन यू विल डू दिस, बिकॉज अभी भी ROF is not online. That takes, getting a certificate itself is a huge task. Right. What do you do? So in a simple language अगर हम कहें तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट अगर नहीं करते तो इनडायरेक्टली हमारे इतने नुकसान होंगे कि हमें करना ही पड़ता है. हाँ, आई मीन टू से अगर आपका 100 रुपये के नीचे है और आपको क्लेम करना है तो आप मत कीजिए रजिस्ट्रेशन. और ऐसा अगर आपको कोई मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट मी. सो जैसे हम अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे थे, क्या ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिन्हें सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स को ध्यान में रखना चाहिए सो दैट टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो प्रोसीडिंग्स में अटक ना जाए? हाँ, ये क्वेश्चन है तो 2 लाइन का आंसर बड़ा है कि आप जब कोर्ट जाते हो, ओके, मान लीजिए आपको कोई केस करना हो. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि आपको किसी से पैसे लेने हो. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आप क्या करोगे, आप लॉयर के पास जाओगे, आप एक केस फाइल करोगे रिकवरी का. बट हमारा कोर्ट सिस्टम क्या बोलता है कि आप जब कोर्ट में जाते हो तो आपको जो ओनर है ही हैज़ टू गो. ओनर नहीं जाएगा तो एटलीस्ट उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन यू गो टू द कोर्ट टू फाइल अ केस ऑल्सो यू नीड टू अपॉइंट समवन. क्यों अपॉइंट करना है? बिकॉज दैट इज अ सिस्टम ऑफ CPC, सिविल प्रोसीजर कोड. आपको कोर्ट में केस करना है, आपको फाइलिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है. आप जाते हो कोर्ट में, बाई चांस अगर कल को एविडेंस बढ़ गया, आपको ट्रायल देना है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन लेना है. इट्स अ बिग प्रोसेस. ये बड़े प्रोसेस में प्रॉब्लम किधर आता है सोल प्रोप्राइटर को कि अगर ओनर ही ये सब करने लगे, आप धंधा कब करोगे?
Right. See, I always believe that the owner of any business, they should not spend their time on these activities because उनका काम है धंधा लाना. आप कोई भी बिजनेस कीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप सेल्स वाले को देते हो बिकॉज धंधा वही लेकर आता है. सो यू डोंट वांट टू किल योर सेल्फ इन दिस एक्टिविटीज़, बट जस्ट बिकॉज आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो आप ये सोचते हो मैं किसी और को दूंगा तो वो मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, विच इज़ अ फैक्ट. आई हैव सीन मैनी मैटर्स जहाँ पे प्रोप्राइटरशिप किसी और को दे देते हैं वाया पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एंड ही डजंट नो अबाउट द मैटर. बिकॉज कहते हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में शटर भी हम ही चालू करते हैं, शटर हम ही बंद करते हैं, झाड़ू भी हम काटते हैं, पोछाई हम ही करते हैं. सी दिस इज गुड व्हेन यू आर अ स्टार्टअप, बट आई हैव सीन मैनी बिग पीपल जो 10-10 करोड़ कमा लेते हैं, वो आज भी यही करते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ मैनी इशूज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पार्ट, बट ये प्रॉब्लम है. सेम अप्लाइज टू पार्टनरशिप, बट एटलीस्ट पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में एटलीस्ट आपके पास साथ कोई है. यू नो, हम दो में से एक दिन जा सकता है, बट द सेम प्रॉब्लम कम्स विद दिस पार्टनरशिप. बट अगेन, इफ यू वांट मी टू कंपेयर विच इज़ गुड, आई विल प्रेफर पार्टनरशिप, नॉट प्रोप्राइटरशिप. क्यों? पार्टनरशिप में एटलीस्ट आपके साथ दो जन हैं, आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये काम करूँगा ना, मैं ये काम करूँगा. ओके, अब व्हाट आई एम सेइंग, ये जो ट्रेंड था ये चलता है, ये आई मीन से आज से 6-7 साल पहले ये ट्रेंड चल रहा था. बट व्हाट आई हैव सीन नाउ अ डेज, जो बिजनेस एंटिटीज़ जिनको बहुत इच्छा है ग्रोथ करने का, उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ को समझा है. भले ही वो प्रोप्राइटरशिप से बाहर नहीं जा रहे हैं, बट उन्होंने धीरे धीरे सेगमेंट्स को बढ़ाया है, रिसोर्सेज बढ़ाया है, व्हाट यू कॉल, अपने स्टाफ्स को बढ़ाया है. बट ये पॉइंट अभी भी है इमेंसली. स्पेशली आई हैव सीन इन जैन्स, गुजरातीज़, टू बी से लिटिल बिट ऑफ बंगालीज और मे बी यू नो सम अदर. वो क्या करते हैं, वो अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर हैंड, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. आपने कभी देखा है रेत को पकड़ते हुए? आप रेत को नहीं पकड़ सकते. जस्ट ट्राई टू डू दैट. इफ़ यू विन, यू आर अ जीनियस. इफ़ यू कांट, देन आई एम. Actually, that's true. So moving on, how important is it to carefully draft a partnership agreement? हाँ, ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं ना, सैम्पल एग्रीमेंट सारे लग पड़े हैं. दैट्स वन रीजन व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन टुडे. क्या हुआ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम स्मार्ट हो रहे हैं. बट ये जो स्मार्टनेस है ना, ये वो स्मार्टनेस नहीं है वो प्रवर्ब के साथ. वो कहते थे ना, डोंट डू हार्ड वर्क, बी अ स्मार्ट वर्कर. ये वो स्मार्ट नहीं है. ये जो स्मार्टनेस है वो नॉनसेंस है. आई टेल यू व्हाई. सी, इट्स अ फैक्ट कि लेज़ी पर्सन्स ही आपको नया इन्वेंशन दिलवाता है. बट दिस कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर, स्पेशली इन लॉ. कंट्रोल, कॉपी, पेस्ट, बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. आप किसी से भी करवा लो, उनको अच्छा क्या लगता है, ये कंट्रोल सी दबाना, ये कंट्रोल वी दबाया, ख़त्म अपना काम. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉ में एवरी पॉइंट इज़ डिबेटेबल एंड इंटरप्रेट. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको पार्टनरशिप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आई हैव सीन इन वन ऑफ द मैटर जहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ था, एनी पार्टनर्स फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन एनी एक्टिविटीज़ which is against the current business of partnership firm, okay, will be taken as a breach. Okay. Copy pasted. Actually. बराबर है. हाँ. तो जो दो पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर ऑलरेडी एक धंधा कर रहा था जो सेम बिजनेस में था. हाँ, हुआ क्या, वो बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बड़ा इच्छा से कर रहा था. देन ही रियलाइज्ड कि यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे ही स्टार्टेड टेकिंग अवे द क्लाइंट्स फ्रॉम दैट फर्म टू हिज बिजनेस. सो दिस मैटर वेंट टू द कोर्ट. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़, वो भी रजिस्टर्ड नहीं था. बोलिए, बट ठीक है, दो पार्टनर में डिस्प्यूट रहता है तो आप कोर्ट जा सकते हो. कोर्ट विल नॉट स्टॉप यू बिकॉज, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एज पर सेक्शन 69. वो चले गए कोर्ट में, इंटरप्रिटेशन हुआ. इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने ये पूछा कि आपने कहाँ ऐसे लिखा है कि ही कैन नॉट डू हिज ओन बिजनेस विच इज इन कंटिन्यूइंग द डेट ऑन द फर्म वाज एस्टैब्लिश्ड. ही, आई थिंक ही लॉस्ट समवेयर अराउंड मोर देन 3 to 4 crores. मतलब आपने क्या किया, आपने स्मार्ट वर्क किया. आज की जनरेशन में कॉपी पेस्ट, आगे बढ़ो. इट इज़ नॉट अ गुड पॉलिसी. आई एम अगेन, इफ आई एम टेलिंग यू टू स्पेंड अ मनी, यू विल से आई एम डूइंग समथिंग एल्स. बट लेट मी टेल यू, any agreement to be drafted has to be seen at least by a good consultant. I am not saying you give it to the lawyer.
you give it to CA or CS. But the reason I say that you give it to the lawyer, because the lawyer is aware how the words are interpreted from the court's point of view. Exactly. Drafting cannot be taken as an isolation. No. Drafting always be drafted in a manner how the court interprets and what the judgments are. Exactly. And in my words I would say that आप अपने 15-20 हज़ार बचाने के लिए जो 3-4 करोड़ का नुकसान करेंगे वो बहुत भारी पड़ेगा आगे चल के. अभी जिसने सहा है वो सहा है. सो मूविंग ऑन, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो प्रॉपर्टी रहती है पार्टनरशिप की, उसका लीगल स्टेटस क्या रहता है? सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन इज, एक फर्म है ABC एंटरप्राइजेस. हाँ. उनका एक प्रॉपर्टी है, ऑफिस प्रॉपर्टी है. ओके, स्टेटस पूछ रहे हैं आप, राइट? एग्जैक्टली. वो फर्म का होने वाला है. एज आई टोल्ड यू कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. फेयर इनफ. कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोले तो अलग ही कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट नहीं है. बट व्हाट यू आर आस्किंग मी, जो प्रॉपर्टी फर्म के नाम पर है, इट इज़ ओन्ड बाय अ फर्म. फर्म क्या है? फर्म इज ऑफ 2 पार्टनर्स और मोर देन दैट. सो बेसिकली इट इज़ ओन्ड बाय ऑल द पार्टनर्स. ओके. बहुत कम लोगों को पता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, इट इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी. लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी. नो, इट इज़ एन एंटिटी. Okay. आप देखोगे, बट हम उसको लीगल एंटिटी नहीं मानते. Okay. कोर्ट्स व्यू. Okay. Whatever. Even after registration? It's not a legal entity. Okay. That's it. Simple. जो भी प्रॉपर्टी फर्म्स ओन करता है, it is owned by a firm. It is owned by a firm. Simple. Okay. Now assuming that a firm has an 2 office which is around 2 crores. They have immovable property somewhere around 3 crores, so it makes 5 crores. Exactly. Now suppose you have to pay around 8 crores to outside third party. Okay. So distribute कैसे होगा? पहले तो वो जो 8 करोड़ है उसमें से ये ऑफिसेज निकल जाएंगे. Right. फर्म का है. फर्म का है. अब बचे क्या? 3 करोड़. 3 करोड़. वो 3 करोड़ आपकी जेब से जाएंगे. क्यों? बिकॉज यू हैव चोजन टू यूज फर्म एंड द फर्म इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो जब तक आप अपने पूरे घर बार को नहीं बेच देते तब तक वो पैसा मांगेगा. Right. एंड दिस इज़ वेयर आई टोल्ड इन माई आंसर टू द फर्स्ट क्वेरी कि ये आंसर हम पहले करते तो ठीक था, अभी नहीं. टाइम्स हैव चेंज्ड, लॉज हैव चेंज्ड. सो बेसिकली लॉज हैव टोल्ड यू इनडायरेक्टली, यू चेंज योर सेल्फ, Exactly. एल्स यू विल बी आउट ऑफ दिस मार्केट इन अ वेरी बैड वे. So talking about partnerships only, let's assume that X और Y 2 पार्टनर्स है एक फर्म में and X की मृत्यु हो जाती है. So X के बच्चे अपने आप हेयर हैं, तो क्या वो भी पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे या क्लॉज होना ज़रूरी है पार्टनरशिप? वेल सी, डिपेंड्स हाउ यू ड्राफ्ट एन अग्रीमेंट. ओके. अगर आप अग्रीमेंट में ऐसे राइट्स नहीं देते हो, आप अलग तरीके से राइट्स देते हो कि नहीं आप वो नहीं कर सकते हो, ऐसे कर रहे हो, ओके. डिपेंड. बट आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग इज़ ओके. आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है. देन डेफिनेटली वो उनका शेयर है, उनका हेयर है, तो उनको मिलेगा. बट देन दिस इज़ वेयर द डिस्प्यूट अराइजेस एक्चुअली में. सपोज A और B है, you know, A was supposed to do sales and he was very brilliant in that. B was supposed to take care of all the back office. Okay. A expired. A had 2 girls. They are brilliant, but they are brilliant in some other field. On the field. How they will justify to the growth of this firm? Exactly. So Then this there's is a where problem. whatever you draft it in such a manner that you have your succession plan ready. Exactly. Plan for 100 Don't get years. into this interpretation because कोर्ट की interpretation को it is very difficult to understand. Right. It can be changed any time. So अगर हम यही चीज़ को सोल प्रोप्राइटर की नज़र से देखें, दैट ही इज़ द ओनली वन हु इज़ देयर इन द कंपनी, सो उसकी मौत पे उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसका क्या होगा? उसके लीगल हेयर को जाएगा by default. Again the problem comes. See, this is where, you know, I am of the view that when you start your business, when you are young, हो सके तो give a thought of your succession कि मैं इसको किस तरीके से सक्सेशन में आगे बढ़ाऊँगा. अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे ही करना है, मेरे आने वाले बच्चे नहीं करेंगे बिकॉज लेट देम इंजॉय देयर ओन लाइफ, फेयर इनफ. बट इफ़ यू रियली फील कि नहीं, भले मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं किसी और को देता हूँ जो इसको धंधा चला सके. सो योर बिजनेस सक्सेशन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट लेट मी टेल यू कि मेजॉरिटी ऑफ देम इन प्रोप्राइटरशिप स्पेशली, they don't give importance to business succession plan.
उनको ऐसे लगता है छोड़ना क्या करना है, अब जब तक हम जीवित हैं हम धंधा कर लेंगे, छोड़ देंगे. एंड आई मतलब आई डोंट वांट टू से अबाउट अदर थिंग, बट आई बीइंग फ्रॉम अ जैन फैमिली आई हैव सीन दिस. एक दुकान चल रहा है ज्वेलर्स का, उसके फादर ने चलाया, अच्छे से चलाया, उसका बेटा चला रहा है ना. वो ये अज्यूम करके बैठता है कि वो भी आने वाला भी वही चलाएगा. एंड आई हैव बीन आस्किंग मेनी ऑफ देम कि आपने कोई सक्सेशन बनाया, मतलब कई कारणों हैं, क्या करना है देखेंगे बाद में. सच ढीला ढलाई आंसर्स, सच कैजुअल. आई मीन टू से दे डोंट रियलाइज कि कल को अगर आपको कुछ हो गया देन व्हाट. You want them to run to the courts? You want your son, your wife, or whoever it is to run to the court, to the lawyers and to do this? I mean, I'm amazed. That's what I'm saying. आप succession बनाओ या नहीं बनाओ, I don't want to get into that part. At least speak to someone, at least consult someone कि मेरे बात क्या, मैं हूँ तो क्या, मैं हैं तो कैसे करना है. ये जो W अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट W, it has so much what you call strength in your life. If you avoid this W, you are out actually. Now what is this W? You should know. What, when, who, all those things to consider. So far from my discussion, I could gather one thing, that this is not a very successful business model, partnership and sole proprietors in 21st century. What are your views on this? Well, I don't want to say it is not successful. See, the problem is sometimes laws are made such, I know, because of these new laws, proprietorship and partnership is not a good option. Right. आप मुझे पूछोगे तो proprietorship or partnership is not a good option in this particular scenario because laws have changed totally now. You just don't know when you will get a show cause notice from income tax, from GST, from your creditor, for what. Trust factor has gone down. हम जब बातें करते हैं 40-50 साल पुराने, तभी ट्रस्ट फैक्टर हुआ करता था. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आई हैव सीन इन माई लाइफ जो ट्रस्ट पे चलता था, अभी ट्रस्ट रहा नहीं. ट्रस्ट रहा नहीं बिकॉज दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय रिटर्न अग्रीमेंट्स. अब द मोमेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस बैड, रिटर्न अग्रीमेंट्स एक्चुअली में आपका ट्रस्ट बढ़ाता है, बट टू से कि रिटर्न अग्रीमेंट्स ने उसका जगह ले लिया इज नॉट बैड, इट्स नॉट फॉल्स. आई मीन टू से कहाँ तक है ना, व्हाट टू से, आई मीन टू से यही बोलूँगा कि वो ख़राब नहीं है, बट अगर आप स्टार्ट करते हो करो आप, बट मेक श्योर दैट यू हैव योर प्लान कि ये जब मैं स्टार्ट करूँगा आई हैव टू मूव ऑन, डोंट स्टिक टू दैट. आई एम टेलिंग यू वन एग्जाम्पल एंड देन आई एम लिविंग इट टू यू टू डिसाइड. I know one family, they were doing very well. They were in the business of पेंसिल से जो लीड्स होते हैं ना, पेंसिल में जो लीड्स होते हैं, दे वर इन द बिजनेस ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन. उनका अच्छा खासा बिजनेस भी था, अच्छा खासा था. मम्मी पापा वाइफ 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे इनफैक्ट, एंड दे यूज्ड टू स्टे इन बाइकला. आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक. सडनली द मार्केट क्रैश्ड और बहुत सारा उनका उधार आ गया. पैसे आ नहीं देते बिकॉज ज़्यादातर बिजनेस क्रेडिट पे होते हैं. ही वेंट इन टू अ ह्यूज डेप्ट. द डेप्ट वॉज अराउंड मोर देन आप बोलिए ना 7 से 8 करोड़. ही वॉज नॉट एबल टू पे. सब जन घर पे आने लगे, पैसे मांगने लगे. एंड वन डे ही टोल्ड कि मुझसे कुछ जम नहीं रहा है. विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग, आई थिंक ही कमिटेड whatever. What happened? Because of whatever reasons, I don't want to get into, but his family suffered a lot. Exactly. Give importance to that. आप ये मत सोचिए कि जो होगा देखेंगे, वो नहीं होता ऐसा. You are there, you think of the future generation, and this is where the Indian Indian संस्कार आप बोलते हो, it comes into picture because we believe in saving ourselves and about future. Exactly. You name any country which believes in saving for others in futures. If so, wow. But I believe that India gives more respect to save future, right, and give some time to present. Exactly, that's true. So Lalitji, the very last question, since you have been practicing in this field for more than 16 years now, so according to you, what is the right time for a sole proprietor or partnership to convert into something else? Okay, see, right time, maybe I will not able to decide. Okay, you start a business. आज की तारीख में स्टार्टअप्स आने लगे. That's very good initiative, definitely by government. आप जो स्टार्टअप करते हो,
आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बिज़नेस है वो कैसा है, मॉडल कैसा है, मुझे कितना आगे जाना है, सक्सेसफुल का रेशियो क्या है. डोंट गेट ऑन दैट पार्ट. बट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वे, दैट इज़ द राइट टाइम यू नीड टू डिसाइड कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ. इफ़ यू आस्क मी, आई हैव सीन ज़्यादातर बिजनेस जो सक्सेस हो रहे हैं, दे स्टार्ट विथ प्राइवेट लिमिटेड और LLP. ओके. बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट. ओके. डेफिनेटली आप जब बिजनेस एंटिटीज करते हो, यू थिंक ऑफ टैक्सेशन एस्पेक्ट. एग्जैक्टली. प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को चेंज कब करना है, देन आई विल टेल यू टुडे इज़ द राइट टाइम. डू इट. बिकॉज उसका जो लिमिट लाइबिलिटी का जो इश्यूज है, इट्स अ वेरी बिग रिस्क यू आर टेकिंग इन योर लाइफ. आप कितना भी कमा लो, आई एम नॉट सेइंग यू मे बी 100 करोड़ पर्सन, फेयर इनफ, बट यू जस्ट नेवर नो व्हेन द बैड डेज विल कम. You can't predict, right? And I always believe in one thing: you go out, you do the business, you enjoy the business, your family rely on you, they trust you, they are totally with you. You really want कि आपकी गलती आपकी फैमिली भुगते हैं. And if you really love them, I don't know, I mean to say, for me, start from today, convert कर लीजिए, कोई हार्म नहीं है उसमें. Exactly. तो ललित जी, अभी हम चेंज के बारे में बात कर रहे थे कि बिजनेस एंटिटीज़ को समय आ गया है, सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप्स, कि वो अपने टाइप ऑफ बिजनेस चेंज करें. सो ऐसे कई ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स हैं जो आज भी चेंज से कतराते हैं बिकॉज दे डोंट नो द रूल्स एंटायरली. सो उनके लिए व्हाट आर द टिप्स? हाँ, वेल, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, बट मे बी रीजन्स बहुत सारे होंगे. बट आई नो, आई टेल यू वन फैक्ट. दिस इज़ वेयर प्रोफेशनल्स कम्स. I still remember that when the LLP came, in enactment. Now LLP means Limited Liability Partnership. I still remember that ICAI, CS body, they informed the professionals कि आप इसके बारे में लोगों को बताइए, इसका benefits बताइए. And they just wanted everyone to understand the benefit of this. अब बहुत जितने भी businessmen हैं, जो भी proprietorship करते हैं, नहीं करते हैं, right? Everyone has their own CA. राइट, दे डू. सो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उनके सीए ने उनको बताया नहीं होगा. बट मैं अज्यूम करता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. तो पता कर लीजिए कि किस तरीके से नए नए कानून आ रहे हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहता है कि आप अपने लाइबिलिटीज़ को बचाइए. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्नमेंट ने एक नया एंटिटी बनाने को ऑप्शन दे दिया है, OPC, 1 पर्सन कंपनी. पार्टनरशिप को LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ये क्यों किया है? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स यू टू गो अहेड इन फ्यूचर. अगर आप अभी भी वहीं पे अटके हो, देन देयर हैज़ टू बी 2 रीजन्स. वन, यू आर टोटली इग्नोरिंग द फैक्ट. मतलब आप छोड़ रहे, जो होगा देखेंगे यार, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है. और दूसरा, जब आएगा तब देखेंगे. ये सही नहीं है. आपको अगर अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं क्यों नहीं करूँ, मैं आपको एक ही रीज़न देता हूँ: अनलिमिटेड लाइबिलिटी. आज की तारीख में ऐसे ऐसे लॉज आ गए हैं, मार्केट ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसे चेंजेस हो रहा है. आई एम प्रिटी मच श्योर कि आज की जनरेशन हो या व्हाटएवर, मोबाइल्स तो ऐसे चेंज हो रहे हैं बिकॉज नए फीचर्स आ रहे हैं. सो जब इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा हो, वाई यू डोंट वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट अननोन लाइबिलिटी. तो जब हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, अगर आपको ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपको एक नया वर्ड देता हूँ, अननोन लाइबिलिटी. आपको भी नहीं पता कि वो लाइबिलिटी कब आएगा. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. प्रोप्राइटरशिप वाले आजकल अग्रीमेंट साइन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के. डेफिनेटली बहुत सारे लोग तो ऐसे साइन कर देते हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है. वो बोलते हैं हमें भरोसा है साहब आप पे. मैंने देखा है. आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो अपना लाइबिलिटी सेव करके आपके ऊपर ही लाइबिलिटी डालते हैं. मैं आपको पूछ रहा हूँ, कल को मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो गया तो, अगर आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दूँ तो मैं आपको देता हूँ. पनवेल के आगे एक जगह है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ. हमारा ही वॉज नॉट माई क्लाइंट, बट स्टोरी क्या है कि उसने एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करेगा. पड़ा नहीं एग्रीमेंट, बिकॉज जहाँ से ये आ रहा था काम, इट्स अ वेरी बिग कंपनी. आँख बंद करके साइन कर दिया. बराबर है, कॉन्ट्रैक्टर था. मैं टेल यू व्हाट हैपेंड. वो अपने 200 आदमी भेजता था वहाँ पर
खुदाई करने के लिए। ओके। पानी भर गया बारिश में, तो उन्होंने बोला कि आप और भेजो। उसने बोला मैं और कितना भेजूँ, हाँ। मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। उसने उसको अग्रीमेंट का क्लॉज बताया। ही वॉज शॉक्ड। वो ये हो गया, भेजना तो था, अभी अग्रीमेंट से बाइंडिंग है, भेज दिया। इस बीच में क्या हुआ कि उनसे उतना काम नहीं हो पा रहा होगा, तो उस कंपनी ने जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने अपने आदमी को भिजवा दिया। ओके। तो इन्होंने अगर 300 भेजा तो उन्होंने 300 करवाया, तो काम हो गया। तो जब इन्होंने इनवॉइस रेस किया 300 के लिए, तो उन्होंने इनवॉइस रेस किया कि भाई आपके 300 को छोड़ो, मेरे 300 आए थे आपके यहाँ काम करने। अब बताता हूँ, इन्होंने एक लेबर का मान लो 20 रुपया चार्ज किया, उन्होंने 60 रुपया कमाया क्या ना गया क्या। व्हाट वाज द एंड? कंपनी बंद करना पड़ा। उसने लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, जिसको पैसे देने थे वो बंद कर दिए। मे बी आज की तारीख में उसने वो कंपनी बंद कर दिया होगा। आई मीन टू से आटा लॉस। इसको बोलते हैं अननोन लायबिलिटी। बट ये जो अननोन लायबिलिटी है, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं। एक, यू योरसेल्फ फ्रॉम योर इग्नोरेंस और योर इडियोसिटी यू वांट देम टू कम टू यू। और एक होता है जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है, डेफिनेटली यू आर नॉट एट योर फॉल्ट। बट जो आप भुलाते हो, उसको क्या कहना चाहिए? आई मीन टू से मैं इतना ही बोलूँगा, फिर ट्राई टू चेंज योरसेल्फ. Exactly, you can avoid these situations. We'll be discussing about LLP and OPC further, but before that, one question. Lalita ji, it was my suggestion that जिस तरह MCA की सर्विसेज सब ऑनलाइन है, मैं LLP या OPC किसी के बारे में भी जाके सर्च कर सकती हूँ उसकी डिटेल्स। आपको लगता है ऐसा कि सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप्स को भी वैसे बनाना चाहिए प्लेटफॉर्म? वेल, आपका ये क्वेश्चन अब भी आया है, बट 2 साल पहले ही मैंने 2 लेटर्स लिख चुका हूँ लॉ मिनिस्टर को कि आप क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑनलाइन नहीं ला रहे हो। जिस तरीके से MCA है, ROC है, वो डेटाबेस संभालता है आपके कंपनीज़ का, आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को क्यों नहीं ला रहे हो? वेल, आई डोंट नो, अब तक तो आंसर्स आया नहीं उनके यहाँ से। आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडमार्क लॉ हैज़ caught the momentum of this market. Everyone wants their mark. हम सबको अपना ब्रांड चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं प्रोप्राइटरशिप से, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बैंक के पास जाते हो तो बैंक बोलते हैं कि वी आर बाउंड बाय द कॉन्फिडेंशियल, हम आपको बताएंगे नहीं। आप केस किस पे करोगे अगर मुझे उनसे पैसे लेने? तो वो एड्रेस चेंज कर देता है। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स इतने बड़े हैं कि मैं प्रोप्राइटरशिप को पकड़ते पकड़ते मैं कभी कभी ये हो जाता हूँ, मैं खुद ही अननोन हो जाता हूँ। आप सोचिए कि मैं एक नोन कैटेगरी अननोन कैटेगरी में घुस जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ मैंने क्यों किया, विच इज़ नॉट गुड। मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कानून नहीं लाकर एक तरीके से आप उनका राइट्स छीन रहे हैं। राइट। एक डिक्री को एग्जीक्यूट करना इज इक्विवेलेंट यू आर फाइलिंग ए न्यू केस। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने अभी लेटेस्ट में कहा है कि आप 6 महीना में अंदर डिसाइड करो, बट उसमें भी प्रोविज़न है। आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो जो प्रोविज़न है वो और डिले करवाएगा। बट उसको छोड़ के अगर आप एक डेटाबेस बना लेते हो ऑनलाइन, आज मुझे मान लीजिए मेरे पास डेटाबेस है, आप उसके लिए चार्ज कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ आप फ्री कीजिए, गवर्नमेंट से चार्ज फॉर इट। आप चार्ज कीजिए, आपके पास ऑलरेडी सब डेटाबेस है, सभी का पैन कार्ड होता है, GST होता है, आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कैटेगरी बनाना है। ये प्रोप्राइटरशिप का डिटेल्स है, इनका ये GST है, ये प्रोप्राइटरशिप है जिनका पैन कार्ड नहीं है। आप जिस तरीके से आप बोलते हो कि हमें पता होना चाहिए कि लीगल कौन है और इलीगल माइग्रेंट कौन है, उसी तरह हमें भी तो पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरशिप में कौन क्या कर रहा है। हमें कुछ नहीं पता। आज की तारीख में वी हैव द डेटाबेस ऑफ द कंपनीज, वी हैव अ डेटाबेस ऑफ LLP, वी हैव अ डेटाबेस ऑफ ROF, बट नॉट ऑनलाइन। तो मैं उसको अज्यूम करता हूँ मुझे नहीं मालूम है, बट वी डोंट हैव एनी डेटाबेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। एग्जैक्टली। अब आपको पता ही नहीं है। आप सोचिए अगर आप इन चीज़ों को ऑनलाइन लेकर आओगे तो कितना मार्केट बढ़ेगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। आपका जो अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है वो बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट, मे बी आई नो द रीज़न कि इतना बड़ा मार्केट है, हम कब क्या करें। बट इफ़ दैट इज़ सो देन दैट्स अ वेरी बैड कॉल। एज द गवर्नमेंट आई फील वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। आप एक ही वेबसाइट बनाइए और उसको ऑनलाइन लाइए। अगर आपको लगता है नहीं तो आप उसको MCA में जोड़ दीजिए, बट आप कुछ तो कीजिए, मेक इट ऑनलाइन। आई मीन टू से हम बोलते 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी,
बट आई थिंक अभी भी प्रोप्राइटरशिप और फर्म दे बिलोंग टू द लोअर क्लास. To the old generation. And of course, this is food for thought. Moving on to the concept of LLP and OPC recently introduced in India. So what exactly is an LLP? पार्टनरशिप जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनलिमिटेड लायबिलिटी है. सी गवर्नमेंट बहुत सोचता है, लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट बहुत सोचता है पब्लिक के लिए. सबको ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बट कोई भी कानून लाने के पीछे बहुत सारा रेलेवेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए. उनका स्टडीज़ होता है, कमिटी बनता है, वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, सबके प्लस माइनस देखते हैं. LLP डेफिनेटली उसके बाद ही आया होगा. अच्छा, LLP कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस उसको एक तरीके से LLP नाम दिया गया. LLP आया क्यों? पार्टनरशिप जो पुराना जो ट्रेडिशन था, पार्टनरशिप एक्ट, उसमें सबसे बड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. Right. और हम देख ही रहे हैं कि कितने लोग, यू नो, मैनी ऑफ देम जिनका बिजनेस क्रैश हो गया है, जो पैसा नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ जस्ट हैविंग अ पार्टनरशिप. उनका खुद का घर अभी डेंजर में है. Right. इसके लिए उन्होंने कंसेप्ट लाया LLP. इसका मतलब आप LLP अगर करते हो, पार्टनरशिप और LLP में कोई फ़र्क नहीं है. फ़र्क क्या है? LLP इज़ गवर्न बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आपको थोड़ा फाइलिंग करना होगा, लेकिन आपका लायबिलिटी तो लिमिटेड है. Exactली. और क्या चाहिए? आप करो बिजनेस. आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ सम नॉनसेंस रीज़न मुझसे पैसा मांगे जा रहा है, हाथ खड़ा कर दो. दैट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, बट मुद्दा यही है. फॉर मी द बिगेस्ट एडवांटेज इज लिमिटेड लायबिलिटी. मैंने अगर 1 लाख का कैपिटल डाला है, मेरे ऊपर 1 लाख के ऊपर कॉस्ट नहीं आना चाहिए. आप खुद सोचिए, अगर आपको ये पता नहीं है और आपको आज पता चला है तो डू दैट. नहीं पता है then somewhere I think you are not updated with the new laws, which is again is already hitting your business. Exactly. It's a very big loss for your business if you're not aware what new laws are there. Another new law is OPC, one person company. देखिए, मैंने जैसे कहा था ना, गवर्नमेंट बहुत सोचता है. गवर्नमेंट को पता है कि हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, हम तो प्रोप्राइटरशिप चेंज करेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए ये भी लाया OPC. OPC बोले तो 1% प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी आपका लायबिलिटी लिमिटेड है. Exactly. अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? सोल प्रोप्राइटर के लिए नया सिस्टम लाया OPC, पार्टनरशिप के लिए LLP. इनफैक्ट दे आर वेटिंग कि किस दिन, अब जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था कि प्रोप्राइटरशिप को ऑनलाइन लाना चाहिए. आई एम प्रीटी मच श्योर कि गवर्नमेंट का ये थिंकिंग होगा कि हो सके तो पहले इनको कन्वर्ट होने दो, बिकॉज अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस बन जाएगा. बट वो ऑनलाइन आना चाहिए, बिकॉज जब ये कन्वर्ट होगा ना नहीं होगा, वी कैन वेट फॉर दैट. जब वो कन्वर्ट होगा तो उनके डेटाबेस में आ जाना चाहिए कि दिस इज़ कन्वर्टेड टू दिस. एक डेटाबेस बनाना इंपॉर्टेंट होता है. सो एक बेनिफिट तो हमने देखा कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है OPC में भी, LLP में भी. और क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, बेनिफिट्स बहुत हैं. आप बिज़नेस अगर किसी से करना चाहते हो तो आपको ट्रांसपेरेंट होना इंपॉर्टेंट है. मैं आज अगर किसी से बिज़नेस करता हूँ, आई मीन टू से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आज की तारीख में क्या हुआ है, A अगर बिज़नेस करना चाहता है B से, तो A क्या करता है, A पूछता है B को, आपका मुझे KYC दो. KYC बोले तो नो योर कस्टमर. आप कौन है, आप क्या है, आपका पैन कार्ड दीजिए. वो हर कोई लेता है. अब मान लीजिए कि आप अगर प्राइवेट लिमिटेड हो, आपका डेटाबेस उनको ऑनलाइन मिल जाता है. आप सोचिए कि उसको क्या लगेगा कि यू आर अ वेरी ट्रांसपेरेंट कंपनी, यू आर अ ट्रांसपेरेंट बिजनेसमैन, आपका सब डिटेल्स मुझे मिल रहा है, तो मैं आपसे मांगने से पहले मैं खुद ROC से ले लूँगा. यू जस्ट इमेजिन द ट्रस्ट जो उसका ग्रो हो रहा है. एक बार अगर मुझे पता है कि मैं किसके साथ धंधा कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा. आज क्या हो रहा है कि मैं किसी प्रोप्राइटरशिप के पास जाता हूँ, राइट, हमें भरोसा नहीं होता. एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू कि हमारे यहाँ पे भी जब कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो प्रोप्राइटरशिप हुआ इन अ वेरी बिग बिजनेस 10 to 20 करोड़, हम ये बोलते हैं भाई आपका वेबसाइट भी नहीं है ना, आपका कुछ है ही नहीं, कार्ड दे के जा रहे हो, बट वी शुड नो एटलीस्ट योर एग्जिस्टेंस. एग्जैक्टली. तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड योर पार्ट. सो बेनिफिट्स बहुत है, गिनाते गिनाते इट विल टेक मी आवर्स. बट अगर आपको कुछ टेक अवे करने जाना है, आप एक चीज़ सोचिए, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी से ही बढ़ता है. ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इज़ द ओनली फैक्टर विच विल टेक योर बिजनेस टू यहाँ से यहाँ. अब अगर लॉ आपका साथ दे रहा है ये दोनों चीज़ में, तो आप ले लीजिए. एग्जैक्टली. सो दैट्स योर कॉल. अगर आपको कॉम्पिटिटर से जीतना है, यू टेक योर कॉल. अगर आपको अभी भी लगता है कि रहने दे यार, चलता रहेगा, बिकॉज हमारा हैबिट हो गया है, चलने वाला एटीट्यूड है, चलेगा चाल से, सी ये तो चेंज होगा नहीं.
हो सके तो ट्राई कीजिए, गो फॉर इट। सो आसान शब्दों में LLP और OPC एक हायर डिग्री ऑफ ट्रस्ट क्रिएट कर देता है आपके हाँ, डेफिनेटली बिजनेस पार्टनर्स के। डेफिनेटली। और ये बेनिफिट तो आपको फंडिंग में भी काम आएगा। कोई भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में फंड नहीं करेगा अगर आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप लेके जाते हो। एक्चुअली दैट्स ट्रू। सो LLP की जब हम बात करें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है LLP पे या फिर डिफरेंट प्रोविजन है उसके लिए? अलग है। ओके। LLP इटसेल्फ इज़ अ न्यू लॉ, उसका अलग से कानून बनाया हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप का अलग कानून है। Okay. दोनों का अलग अलग रखते हैं। LLP इज टेकन केयर बाय ROC, अपना MC मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अलग से एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ओके। पार्टनरशिप एक्ट अलग है। इंटरप्रिटेशंस में डिबेट में कभी कभी ऊपर नीचे आ सकता है, बट दोनों अलग अलग कानून है। ये एक अनलिमिटेड का कानून है, ये एक लिमिटेड का कानून। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट LLP में तो बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन है, बराबर है। LLP में पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, वो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर, फाइनेंस पार्टनर, आप जो नाम देना है दे दो, ये डिफाइंड नहीं है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। ओके। बराबर है। अगर आपका वो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बराबर नहीं है तो सब अटकेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको चूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा। इट्स जस्ट दैट डेजिग्नेटेड पार्टनर आर लायबल टू पे द गवर्नमेंट टैक्सेस एंड एवरीथिंग, दैट्स इट। एग्जैक्टली। सो अगर हम एक कंसेप्ट की बात करें, सो कैन अ सोल प्रोप्राइटर बी अ पार्ट ऑफ LLP? ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में। ओके। इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट। उसमें इंटरप्रिटेशंस भी आते हैं कि एक प्रोप्राइटरशिप जो ऑलरेडी है, क्या वो LLP में पार्टनर बनेगा? हाँ। सो आई विल नॉट से नो, इट्स अ डिबेटेबल थिंग एक्चुअली। ओके। सो मतलब स्टैंड क्लियर नहीं है अभी इस पॉइंट पे? है, स्टैंड क्लियर है। इफ़ यू आस्क मी, बनना चाहिए। ओके। सिंपल है, बिकॉज वो प्रोप्राइटरशिप है। एग्जैक्टली। मतलब ही इज रनिंग हिज ओन थिंग ऑन हिज ओन। हाँ, बट देन अगेन इसके भी अगेन आई टोल्ड यू, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। आप उसको कैसे करते हो। पहले क्वेश्चन आता था कि दो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। LLP में ये सब डिबेट्स होने वाले हैं, इंटरप्रिटेशंस आने वाले हैं, और आई थिंक सो रूलिंग्स भी आ चुके हैं। ओके। सो अगर आप पार्टनरशिप्स की बात करें, भले ही नॉर्मल या फिर LLP, सो दो पार्टनर्स होते हैं, इन केस दोनों रिटायर हो जाए तो LLP डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, और एनी अदर प्रोविजन विच कैन प्रिवेल? पार्टनरशिप का यही फंडा है। दो पार्टनर है, दोनों मर गए, ख़त्म बाय डिफ़ॉल्ट। दो पार्टनर है, एक मर गया, लीगल हेयर नहीं आ रहा है, ख़त्म। बट देन अगेन वी नीड टू क्रिएट, अगेन आई एम टेलिंग यू, वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्लॉजेस वैसे ही बनाने हैं पार्टनरशिप में। LLP में भी बनाओ तो अच्छा, LLP में तो ऑलरेडी बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। राइट। सो अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, सक्सेशन। एग्जैक्टली। सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस में। और वैसे भी इंडिया में ज़्यादातर जो छोटे बिजनेसेस है वो अपने सक्सेशंस नहीं बनाते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द बिग कंपनीज आर इंजॉइंग द फ्रूट्स, बिकॉज उनका सक्सेशन रेडी पड़ा है। दे हैव केप्ट एवरीथिंग इन अ सिस्टम, दे बिलीव इन सिस्टम, वी डोंट बिलीव इन दैट मच सिस्टम। वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन सिस्टम, बट वी आर टेकिंग सो मच टाइम कि हमारा सिस्टम जब उनके सिस्टम से मैच होगा, वो ऑलरेडी वो सिस्टम को चेंज करके अलग सिस्टम में चले जाएंगे। एग्जैक्टली, आगे बढ़ चुके होंगे। हाँ, तो हम उस सिस्टम को पकड़ने के लिए ये वाला सिस्टम को छोड़ देंगे, फिर हमें ही नहीं पता हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आर देयर एनी अदर ग्राउंड्स जिस पे हम डिसोल्यूशन ले सकते हैं पार्टनरशिप का? जैसे कि बहुत तरीका है, दो पार्टनर है, दोनों ने फ्रॉड किया हो, ओके, बट देख ये तरीके बहुत हैं। डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि दो में से एक चला गया, एंड। ओके, दो में से दो गया, एंड। दोनों लीगल हेयर अगर आते हैं, फेयर इनफ, नहीं आते, एंड। ओके, सिंपल। डिसोल्यूशन मीन्स टोटली क्लोज्ड। ओके, सो जो जिंदा है वो है तो है, जो है ही नहीं है वो खत्म है। मिनिमम हैज़ टू बी 2, दैट्स इट। 8 पार्टनर है, 6 मर गए तो भी वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, नहीं हुआ, 2 हैं अभी। 2 होने चाहिए, मिनिमम 2। सो फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, एज आई कुड गैदर, भले ही सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म सबसे बेसिक, फंडामेंटल, सबसे पुराने टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ हैं इंडिया में, बट अभी बदलते दौर के साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है उन बिजनेस एंटिटीज़ के लिए, और साथ ही सक्सेशन प्लान का ना होना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसी के सोल्यूशन में आया है LLP और OPC। और आज का हमारा डिस्कशन बहुत हेल्दी था, बहुत फ्रूटफुल था। आई कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड एक्सप्लेनिंग ऑल द कंसेप्ट्स सो क्लियरली। नमस्ते, थैंक यू।